proportions. What is proportions? A is to B equal to C is to D. It is a ratio of, there are two ratios, equality of two ratios. It is the equality of two ratios. A by B equal to C by D. Cross multiplication. AD equal to BC. It is known as a whole quantities or terms. A is the first term, B is the second term, C is the third term, D is the fourth term. A is the first, B is the second, C is the third, and D is the fourth term. A and D, that is first and fourth, known as the extremes. Known as a extremes. B and C, second and third, known as a middle or means. Product of the extremes equal to product of means. Again, product of extremes equal to product of means. Again repeat. A is to B equal to C is to D. A by B equal to C by D. Cross multiplication. AD equal to BC. It is known as a cross product rule. Known as a cross product rule. A is to B equal to B is to C. Known as a B square equal to AC. It is known as a continue proportion. देखो B कॉमन है. A is to B is to C. You can write as a E is to B is to C also. It is a continue proportion. A first term, B second and middle term, C is the third term. मीन प्रपोर्शन दैट इज द B. दोनों में कॉमन है वो मीन प्रपोर्शन है. दोनों रेशियो में कॉमन है वो मीन प्रपोर्शन है. B स्क्वायर इक्वल टू AC. B इक्वल टू अंडर रूट AC. देखो यहाँ चार जो आपके टर्म्स है, फर्स्ट टू एंड नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, A एंड B वो सेम काइंड होना चाहिए. A kg में तो B kg में, A ग्राम में तो B ग्राम में. समझो A kg में है, B kg में है, तो C एंड D दोनों ग्राम में चलेगा. फर्स्ट टू टर्म्स be of the same kind and next two term of the same kind. ऐसा जरूरी नहीं कि all four in same kind. समझ लो A and B in ग्राम तो चलेगा. C and D may be in kg. A and B in kg, C and D may be in gram. These all are allowed. First two are similar kind and next two are similar. Example 1, page number 1.9. Numbers of 2.4, 3.2, 1.5 and 2. 2.4, 3.2, 1.5 and 2. Multiplication of the middle equal to multiplication of the extreme. क्या बोला है? Prove that product of the extreme equal to product of the means. ये दो extreme है, first, second, third and fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ है ना वो एक्सट्रीम है, सेकंड एंड थर्ड है ना वो मिडल है. प्रोडक्ट ऑफ द मिडल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम. वही प्रूव करना है. मल्टीप्लाई करो 4.8 आएगा. मल्टीप्लाई करोगे 4.8 आएगा. सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द x. सेकंड टर्म फाइंड करना है. 10/3 is to x equal to 5/2 is to 5/4. x फाइंड करना है सेकंड टर्म. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सट्रीम 10/3 multiply 5/4 equal to multiplication of the middle 5/2 into x. x लेफ्ट साइड रखो, बाकी तो 10/3 multiply 5/4 रिवर्स हो जाएगा 2/5. 2/5. Your answer will be 5/3. Your answer will be 5/3. Simplification very easy. 5 निकल गया. 2 यहाँ पे 5 बचा क्या? 5/3. Third, find the fourth proportion. 2/3, 3/7 and 4. 2/3, 3/7 and 4. Find the fourth proportion. Multiplication of the second and third.
मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, x लेफ्ट साइड रखा 3/7 into 4 रिवर्स हो जाएगा 3/2, आंसर आएगा 18/7. Example 4, find the third proportion 2.4 9.6. देखो 4 proportion होते हैं ना तो A B C D होते हैं, 3 proportion है तो A B and C, तो B square equal to AC. यहाँ पे आपको क्या नहीं दिया है, A दिया है, B दिया है, C नहीं दिया, तो डायरेक्टली क्या होगा, B square equal to AC. B है 9.6, 9.6 का स्क्वायर 2.4 into x, x equal to 9.6 into 9.6 divide 2.4, आंसर आएगा 38.4. Fifth example, find the mean proportion between 1.25 and 1.8. देखो mean proportion पूछा है, A, B and C, ये पूछा है आपको, A and C दिया है, A है 1.25, B है 1.8, मल्टीप्लाई 2.25, B स्क्वायर है, लेकिन आप B फाइंड करने जाओगे तो 1.5, B इज 1.5, 2.25 का सिर्फ आपको अंडर रूट करना है, आपका फाइनल आंसर आएगा 1.51. फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द proportions. Already we have discussed cross multiplication. It means A is to B equal to C is to D, and cross multiplication होगा तो AD is to BC. समझो यहाँ पे है A by B, C by D, cross multiplication AD is to BC. Now second property, इनवर्टेंडो. क्या है, जो से बोलो, क्या है, इनवर्टेंडो. इनवर्टेंडो यानी इनवर्स, इनवर्स यानी A is to B में A डिवाइड B है, C is to D में C डिवाइड D है, B एंड A की जगह चेंज कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इनवर्स हम बोलते हैं उनको, वही चीज है. A की जगह B, B की जगह है, B is to A equal to D is to C. A by B दस जगह B by A, C by D दस जगह D by C. इसको क्या बोलते हैं, इनवर्टेंडो. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. थर्ड, A is to B equal to C is to D. अल्टरनेंडो, जगह बदल दो, AC का, सॉरी BC का, B की जगह C and C की जगह B. आपको यहाँ पे A is to B equal to C is to D था, A by B equal to C by D, B and C की जगह बदल दो, A is to C equal to B is to D, A by C equal to B by D, A by C equal to B by D. क्या बोलते हैं उसको, अल्टरनेंडो. उसको बोलते हैं अल्टरनेंडो. नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंडो यानी प्लस. A is to B equal to C is to D, न्यूमरेटर ऐड करोगे A plus B डिवाइड B, C plus D डिवाइड D, उसको बोलते हैं कंपोनेंडो. यहाँ प्लस से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, डिविडेंडो. प्लस की जगह माइनस करोगे तो हो जाएगा डिविडेंडो. A is to B equal to C is to D, A minus B divide B, C minus D divide D, तो हुआ आपका डिविडेंडो. A is to B equal to C is to D, A plus B divide A minus B. ऊपर हुआ वो कंपोनेंडो, नीचे डिविडेंडो, ऊपर कंपोनेंडो, नीचे डिविडेंडो. यानी न्यूमरेटर में कंपोनेंडो, डिनोमिनेटर में डिविडेंडो. क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो. A plus B divide A minus B, C plus D divide C minus D. कंपोनेंडो के बाद एडेंडो, एडेंडो, डंडो, एडेंडो, मतलब एडेंडो में A is to B equal to C is to D equal to E is to F, इनफाइनाइट है. फर्स्ट टर्म सभी का उठा लो, A is to C is to E equal to B is to D is to
हैव, यानी आपने फर्स्ट टर्म उठा लिया एंड सेकंड टर्म उठा लिया एंड 8 प्लस की जगह माइनस, इसलिए उसको बोलते हैं सब्ट्रैंड और दो से ज्यादा रेशियो से A:C:E, इसकी जगह क्या करना है A माइनस C माइनस E, B माइनस D माइनस A। रिपीट कर दो पूरा सब। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस इन्वर्टेंडो A बाई B की जगह B बाई A, अल्टरनेंडो A बाई B की जगह A बाई C, अल्टरनेंडो कंपोनेंडो A प्लस B बाई B, डिविडेंडो A माइनस B बाई B, कंपोनेंडो डिविडेंडो A प्लस B डिवाइड A माइनस B, एंड एडेंडो A प्लस C प्लस E, एंड सब्ट्रेंडो A माइनस C माइनस E। मैंने फर्स्ट टर्म सभी का लिया है। Friends, example 1, page number 1.11. A is to B equal to C is to D. 2.5 is to 1.5. MCQ से तो चलेगा, otherwise you can't write A equal to 2.5. हम यहाँ लिखेंगे A equal to 2.5. Actually में A equal to 2.5x होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो MCQ से आंसर सेम ही आएगा, C equal to 2.5. Again B equal to and D equal to 1.5. A and C है वहाँ पे 2.5 रख दो, and B and D है वहाँ पे 1.5 रख दो। पूछा क्या है आपको A plus AD is to BC पहले पूछा है। फर्स्ट क्या पूछा है AD is to BC। A है वो भी 2.5 है and B है वो 1.5 है। A 2.5 B 1.5, B 2.5 C 1.5, तो 1:1 हो जाएगा। सिंपल ही चीज है। यहाँ पे आपने जो लिखा है A by B C by D equal to 2.5 divide 1.5, A C 2.5 B D 1.5, A plus C बोला, A plus C तो 2.5 plus 2.5, B plus D तो 1.5 plus 1.5 हो जाएगा क्या 5:3। अगेन A B 2.5 B 1.5 C 2.5 D 1.5। ये वैल्यू आपको रखना है, वो कुछ नया नहीं है। एग्जाम्पल 2, A by 3 equal to B by 4 equal to C by 7। वैसे तो आपको क्या अज्यूम करके A equal to 3 के लिखना है, लेकिन वहां पे जरूरत नहीं है। A equal to 3 ले लो, B equal to 4 ले लो, C equal to 7 ले लो। A plus B plus C 3 plus 4 plus 7, divide 7, 14 by 7, answer 2। A equal to 3, B equal to 4, C equal to 7 रख दो, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समवॉट गुड, आप कभी चाय का बिजनेस देखा है तो टी में क्या होता है, टी में किसी का टेस्ट अच्छा होता है, किसी का कलर अच्छा होता है, तो उसको मिक्सचर करना पड़ता है, तभी अच्छी टी आप बना सकते हो। यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन है, डीलर मिक्सिस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजीस। देखो एक उसका कॉस्टिंग है 6.92, दूसरा है कॉस्टिंग 7.77। सेल्स द मिक्सचर 8.80, सेलिंग प्राइस है 8.80, अर्न्स प्रॉफिट 17.5%, 17.1/2 यानी 5%। On this sale price, what proportion does mix them? What proportion does mix them? First and second कितने रेशियो में आप यूज करोगे? समझो सेलिंग प्राइस 8.8 दिया है, 17.5% करो इसके, 17.5% 1.54, हमारा एवरेज कॉस्ट आ रहा है 7.26। जितना फर्स्ट मिक्स यूज करेंगे ना उतना हमें प्रॉफिट होगा। 7.26 माइनस 6.92, ये हमारी परचेज कॉस्ट है। फर्स्ट मिक्स जितना यूज होगा 0.34 प्रॉफिट। मिक्स 2 में लॉस है, क्यों? 7.77 में परचेज किया, एवरेज कॉस्ट 7.26, प्रॉफिट लेस करने के बाद एवरेज कॉस्ट 7.26 है, 7.7 लेस करोगे तो इसमें लॉस आएगा, 0.51 का लॉस आएगा।
फ्रेंड्स रिपीट कर रहा हूँ, 8.8 का सेलिंग प्राइस, 17.5% प्रॉफिट लेस करके 7.26 एवरेज कॉस्ट। मिक्स 1 यूज किया तो 0.34 का प्रॉफिट, मिक्स 2 यूज किया 0.51 का लॉस, क्योंकि 6.92 मिक्स 1 का कॉस्ट है, 7.26 माइनस 6.92 प्रॉफिट आया, 7.26 माइनस 7.77 0.51 लॉस आया। आपको ऐसे यूज करना है कि फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों का प्रॉफिट लॉस सेट ऑफ हो जाए, सेट ऑफ द इक्वलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस। आप सामने देखो 0.34 into 3 करोगे, 0.51 into 2 करोगे तो दोनों का प्रॉफिट लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। फर्स्ट का प्रॉफिट 1.02 एंड सेकंड का लॉस 1.02। ये 3 and 2 कहां से आया, क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको देखना है एलसीएम लेके। यहाँ पे 17 से डिवाइड करो, यहाँ पे 17 से डिवाइड करो, दोनों को इक्वल करना है, आपको दोनों को इक्वल करना है। इसीलिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1.02, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.02। तो फिक्स मिक्स 1 कितना यूज करोगे 3, 2 कितना करोगे 2, 2 पे सेकंड इज टू फर्स्ट लिखा, इनकी जगह फर्स्ट इज टू सेकंड होना चाहिए। As per my opinion, this will be the correct. वेरीफाई करो। 5 kg टी बनाना है, 7.26 into 5 36.3 कॉस्ट आपको होनी चाहिए, तो आपका प्रॉफिट ये मेंटेन होगा और ये सेल प्राइस मेंटेन होगा। 36.3 आपका कॉस्ट होना चाहिए, निम्सा 6.92 वाला 3 kg यूज करो, 20.76 एंड मिक्स 2 वाला 2 kg यूज करो, 15.54, तो 36.30 आपका कॉस्ट हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, आपको अलग तरीके से करना तो कर सकते हो, 8.80 into 5 करो, उसमें से 17.5% प्रॉफिट लेस करो, वो भी 36.3 आएगा, वो भी 36.3 आएगा। इनका कंफ्यूज थी ये कैसे आया, तो मैं वही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको मैंने डायरेक्ट एवरेज कॉस्ट ले लिया। आप चाय का 8.8 into 5 लो, उसमें से उसे 17.5% प्रॉफिट लेस करो, तो भी कॉस्ट कितना आएगा 36.3। 36.3 कॉस्ट है। वैसे आपको मिक्स 1 and 2 यूज करना है, 1 आप 3 kg यूज करो, 2 आप 2 kg यूज करो, तो आपका 36.3 कॉस्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट का प्रॉफिट 0.34, सेकंड का लॉस 0.51, दोनों को इक्वलाइज करने के लिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई यहाँ 2 मल्टीप्लाई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका रेशियो है 3:2। फ्रेंड्स, आप क्लास में बीच में बैठते हो तो समझ में नहीं आता, वैसे लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में कैसे आएगा। फर्स्ट वीडियो से सुनो, कोई कंसेप्ट क्लियर होगा। मेरे साथ बने रहिए, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।